our process of understanding the grand vision of Sri Swami Vivekananda, we are here to continue with our sessions of Karma Yoga. And here, till now, we were talking about each is great in his own place and how there has to be a contextual application of even niti or the values and the ethics. And we also saw how each one, as per his ashrama, as per his dharma, can do his duty and yet be equal to the others. And so many other points and the stories Swamiji narrates in this entire process. Now he tells us that the idea of charity slowly is going out of India, and great men are becoming fewer and fewer. When he says, when I was reading English, there was a story about a beautiful boy who had gone out to work and had to give some of this money to the old mother, and this was praised for almost 3 to 4 pages. What was that? I mean, this is something which was so ingrained in us that we do not understand why it should be so much praise. It was, when do you praise something? When you think that something is very odd, it is not the usual. But Swamiji says for a Hindu person, for a Hindu boy, this is a very natural thing. We are having this concept of different rana or the different dates which everybody has to pay. So there is a day wherein you have to pay to the gods and the Almighty for giving this entire possibility of reaching Him through this universe and through the work which is given to us, through the position which is given to us, intellect and the body and our mind, or for all that we have to give His, say, you can say, immense debt on all of us. So we have to give it back. We also have to give back the, pay back the date or the rena which we owe to our parents, Pitrurun or the Matrurun, or there is going to be the, because they have given us not only the physical birth, but they have also given us sanskaras. And then to our grandparents, our entire lineage, our gotra, that means to also the rishis that who have actually shown us the path of the spiritual liberation. And then we have to also so many other dates we generally talk about, that this is what a person has to do, and it's the whole life is structured around this particular thing, that we have already got a lot of things and now we need to give back. And let there be a prayer, as there is a famous Vivekananda prayer also at the end. Eknathji has taught all of us that Jivane Yavadadanam Syat Pradhanam Turuttam Ittesham Prarthana Asmakam Bhagavan Paripuryatam. Whatever I have got in this life, it's so much that let me worthy of returning something more than that. So that's why Swamiji here says that it's very difficult for us to understand. हमें इसको ये ऐसी स्टोरी जब हम पढ़ते थे, अभी बहुत मुश्किल होता है समझना कि इसमें या इतनी क्या विशेषता है. वो अपने दादी के लिए कुछ अगर दे रहा था तो उसका वो एक धर्म था, उसका एक वो कर्तव्य था. उसमें 4-5 पेज के स्तुति के लिए हमें कोई उसमें इतनी बड़ी बात दिखती नहीं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को उसमें बहुत ही अचरज होता है, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो गया. उनके इम्पैक्ट की वजह से या हमारी ही अपनी आत्मविस्मृति की वजह से बहुत सारे लोग वो कहते हैं सब में जस्ट टेक एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स. वो कुछ भी देते नहीं, ना पत्नी को, ना बेटों को, ना माता पिताओं को. ये कुछ गृहस्थ का धर्म नहीं है. दिस इज नॉट द आइडियल ऑफ हाउस होल्डर. एंड नाउ वी सी व्हाट कर्म योगा इज. ही सेज that you, even if you are cheated a million of times, you will never ask a question. You will never think that why I'm doing all these things, because this is the way the life has given you the opportunity to give back. And even at the point of the death also, you will try to help someone without asking a question. That's a great ideal of कर्म योगा. एक निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थता से, अगर आपको कई बार फंसाया भी गया तो मृत्यु के द्वार तक आने तक भी आप दूसरे को मदद करते रहेंगे. आप उसको कुछ ना कुछ देते रहेंगे और सोचेंगे नहीं कि अरे इसने मुझे इतनी बार फंसाया, अभी क्या उसको देना है. तो कुछ सवाल भी नहीं पूछेंगे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. वो उनका नजरिया था, उनकी देखने की वो एक पद्धति, उनका अपना स्वार्थ था. लेकिन जो मेरी जगह है, वो जो मुझे सिखाया गया है, जो मेरे संस्कार, मेरा चरित्र है और मेरे जो संस्कृति का पूरा अर्थ है, वो यही है कि आप देना है, आपको देते रहना है. और लेने वाले ने भी, एक बहुत सुंदर कविता में कहा गया है कि लेने वाले ने भी क्या क्या लेना चाहिए, किससे क्या ले, ये भी समझने की क्षमता हमें होनी चाहिए. और लेते लेते एक दिन जो देने वाला है उसके हाथ लेने चाहिए. वो देने का जो एक दातृत्व है उसको लेना चाहिए. इस प्रकार से कविता कहती है. विंदा करंदीकर ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला, उनकी
एक कविता है जिसको मैंने अभी थोड़ा सा यहाँ पे उद्धरण किया। So never want of your gifts to the poor or expect their gratitude, but rather be grateful that you have been given the occasion to practicing charity. आप अगर किसी गरीब को या किसी जिसको बहुत जरूरतमंद है, ऐसे को कोई अगर आप वस्तु देते हैं, भेंट देते हैं, कुछ दान देते हैं, तो ऐसा मत सोचो कि वो कब मुझे उसके लिए आभार प्रकट करेगा, वो मेरे लिए क्या हमेशा के लिए वो मेरे अधीन रहेगा या मेरा बड़कपन हमेशा वो मानता रहेगा। कोई जरूरत नहीं है। आपको एक अवसर मिल गया कि आप उसको मदद करें, तो इसलिए आपको ही अपने आप में एक कृतज्ञता भाव होना चाहिए। उसकी कृतज्ञता की जरूरत नहीं है, देने वाले को कृतज्ञता होती है कि मुझे ये अवसर मिल गया, मैंने कुछ अपना जो ऋण है उसको मैंने वापस दे दिया। Thus it is plain that to be an ideal householder is much more difficult task than to be a sannyasi. The true life of work is actually harder than to renounce the life. और इसीलिए प्रापंचिकों का जो काम है वो स्वामी जी भी कहते हैं, कई सारे हमारे संतों ने कहा है, ये तो सन्यासियों से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर आप ठीक से वो कर्तव्य कर रहे हैं तो सन्यास से भी प्रपंच का सारे कर्तव्य को निभाना, ये सारे ऋण को हमेशा के लिए देने की कोशिश करना, उससे मुक्त होने की कोशिश करना, कृतज्ञता भाव रखना, किसी से उसको मांगना नहीं, ये बहुत ही मुश्किल बात है। सन्यासी तो वैसे भी अकेले होते हैं और अपने आप सबसे निरीक्ष होते, तो उनको इतने सारे कर्तव्य या उनके अवस्था में ऋण को हमें हम पर ऋण है और हम समाज को ये सब देने के लिए बाध्य है, ये भाव उसमें नहीं आता, वो मुक्त होता है। तो इसलिए अगले चरण में वो कहते हैं कि व्हाट इज ड्यूटी, कर्तव्य क्या होता है। क्योंकि कर्मयोग में कर्तव्य का ही सबसे बड़ा हम कह सकते थे, कहते कि उसके ही सबसे बड़े भाग का एक हम लोग हमेशा से अवलोकन कर रहे हैं कि क्या कर्तव्य भी अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग राष्ट्रों के लिए, अलग अलग समाज के घटकों के लिए अलग होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए वो उल्लेख करते हैं कि मॉडर्न से इन द रिटन बुक कुरान, whatever is written in the Quran, that is your duty. Hindu says whatever is written in the Vedas, it is your duty. Christian says what is in the Bible is your duty. So we find that different people have a different ideas of duty, and they are differing according to the different states of the life, different historical periods, different nations. So the term duty, like any other universal abstract term, is impossible clearly to define. कोई भी ऐसी जो सूक्ष्म जो एक तत्व है उसको इस प्रकार से सहजता से उसको एक ही इस पे बांध देना, किसी उसकी व्याख्या में रख देना, ये बहुत मुश्किल होता है। We can only get an idea of it by knowing its practical operations and results. When certain things occur before us, we have all a natural or trained impulse to act in a certain manner towards them. When this impulse comes, the mind begins to think about the situation. तो ये हमें उसी तरह से जैसे हमने पहले मूल्यों के बारे में कहा, वैल्यूज के बारे में कहा, उस तरह कर्तव्य भी आसान नहीं उसकी व्याख्या करना, बिल्कुल अशक्य है, ऐसा भी वो कहते थे, नामुमकिन है। लेकिन जब उसके प्रैक्टिकल सिचुएशंस आते हैं, कुछ ऑपरेशंस आते हैं और उससे कुछ परिणाम निकलते, तो उससे हमें समझना आसान हो जाता है कि कर्तव्य क्या था, क्या नहीं था, क्या होना चाहिए था। और इसीलिए हर बार जब कोई प्रसंग आता है तो एक नेचुरल या ट्रेन किया हुआ इम्पल्स, एकदम हमारी जो इम्पल्सिव रिएक्शन उस पर होती है या किस प्रकार से हम उसको सिचुएशन को हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर हो जाता है। कैसे मन एक सिचुएशन को उत्तर देता है या उसको अपने प्रतिक्रिया देता है अपनी, इस पे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और समटाइम्स इट थिंक्स दैट इट इज गुड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर अंडर द गिवन कंडीशंस, एट द अदर टाइम्स इट थिंक्स दैट इट इज रॉन्ग टू एक्ट इन द सेम मैनर इवन इन द सेम वेरी सर्कमस्टेंसेस. So the ordinary idea of duty everywhere is that every good man follows the dictates of his conscience. But what is it that makes an act of a duty? तो ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन में जैसे पर्टिकुलर परिस्थिति है, उस तरह से हमें कर्तव्य के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन अगर ये है कि हर आदमी अपने ही अंदर की भीतरी जो आवाज है उसको सुनकर, उसके कॉन्शियंस को सुन के कुछ काम करता है, तो फिर कर्तव्य और ना कर्तव्य इसमें कहाँ अंतर आता है? ये बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम रखते हैं, यहाँ पे स्वामी जी रखते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि क्रिश्चियन कहते हैं कि अगर उसके सामने किसी गौमांस रखा गया, बीफ रखा गया, उसने उसको नहीं खाया, तो उसका अपनी जिंदगी बचेगी। और अगर किसी दूसरे को दे दिया और विल नॉट गिव इट टू सेव द लाइफ ऑफ द अदर मैन,
ही श्योर टू फील दैट ही हैज नॉट डन द ड्यूटी। मतलब खुद भी नहीं खाया, दूसरे को नहीं दिया, उसको लगेगा मैंने अपना कर्तव्य नहीं किया। और उसी चीज को अगर हम लोग यू नो इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे लेंगे तो गोमांस खाना उसको लगेगा मेरा बिल्कुल उसको नहीं खाना यही मेरा कर्तव्य है। तो एक ही चीज, कुछ चीज को खाना न खाना, आज भी इस पर बहुत बड़ा बवाल होता है कि ये खाओ या न खाओ, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये धर्म है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं ये जो इनका बड़कपन यहाँ होता है कि वो किसी चीज को बहुत नजदीकी से, सूक्ष्मता से अवलोकन करके हमें उसका जो यथार्थ है उसको हम दिखा सकते हो स्वामी जी के वांग्मय से। इसलिए वो यहाँ कहते हैं कि ऐसे भी लोग यहाँ पे थे जिनका वो कहते थे हमारा कर्तव्य ही है कि आने जाने वाले लोगों को लूटना, ये हमारा काम दिया है। हमारे वंश परंपरागत जो हमारा धर्म है या काम है वो ये है कि जो भी इस जंगल से गुजरता है या जो भी इस पत्थर से जाता है उसको ठग लो। तो उनको ठग ही कहा जाता है, उनका ये काम ही था। उनको लगता था यही काम तो सबसे अच्छा काम है। तो उनको लगा किसी को मारना, उसका पैसा लेना और ये सब अपना काम है, और ज्यादा जो जिसको ज्यादा मारता है वो और भी ज्यादा अच्छा है। तो ये उदाहरण इसलिए देते हैं हमको समझने के लिए दैट as if anyone goes out just and shoots someone and he will feel sorry for that, he will think that he has done something wrong. But if the same person you just translate into a soldier, he has also gone out and seen someone from the enemy camp and he kills him, it's like a great duty done. So act of killing someone is the same, but one doing it on the street for no reason is considered as the great sinner or a person who is against the law. And the person who has done on the battlefield for enemy person, he has killed someone who belongs to a enemy camp, then it will be considered as a great. That means here we understand that there is not such thing as a defining of a duty. To give an objective definition of duty is thus entirely impossible and it is very subjective. जो सोल्जर के लिए कर्तव्य है वो किसी राह चलते पथिक के लिए कर्तव्य नहीं है। किसी को मारना, किसी को ठगना एक का वंश हो सकता है, उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो उसका कर्तव्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अनेकानेक उदाहरण देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि ये जो सारी कर्तव्य के बारे में सारी चर्चा होती है, इसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत है, कॉन्टेक्चुअलिटी बहुत है। इसका मतलब वो सापेक्ष है, ये किसी भी उसको एक निरपेक्ष दृष्टि से आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो एक हम कह सकते हैं इसमें कि सारी चीजें जो आपको भगवान की तरफ ले जाती है, आदर्श की तरफ ले जाती है, सच्चाई की तरफ ले जाती है, वो आपका कर्तव्य है। जो भी आपको अधोमार्ग पे लेके जाता है, पाप की तरफ लेके जाता है, दुष्टता की तरफ लेके जाता है, वो कर्तव्य नहीं। इस प्रकार से हम उसको अगर व्याख्या करेंगे, इफ वी डिफाइन लाइक दिस, इट सीम्स टू बी मेकिंग मोर सेंस। और इसलिए फ्रॉम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो सर्टेन एक्ट्स हैव द टेंडेंसी टू एक्साल्ट एंड एनोबल अस, and there are some other acts are there who will be degrading us or brutalize us. So that is what is the effect of a particular act on me. By killing a wrongdoer, a person who has been he's a person with an evil character, a person has been ruling somewhere, and he has been already the cause of the disasters and the deaths of the many common people, of the noble people, innocent people. And if another person, good person, goes and kills that evil person, then that should be considered as a great act because it has ennobled him. It has created something good. He has taken that person forward. But if he is opposite of it, that the evil person tries to kill the innocent people, it's a cause of brutality and it is trying to degrade him. So the reason and the effect of it and the context of it all has to be seen to decide what should be the duty of a particular person at a point of time. And that's why he has given the touchstone. Has it brutalized you or has it divinized you? So if it is making you more divine, then it is a act of your duty or it's a noble act. And if it's not doing, it's opposite act. Not the particular detailing of what you have done, but all these things surrounding it. And that is what is very important. So it's not impossible to take out certain acts, which are having a tendency in relation to some other people with the sorts and the conditions, and therefore only one idea of duty which has been universally accepted by all mankind, all ages and sects and countries, and that has been summed up in the Sanskrit aphorism: do not injure any being. Not injuring any being is virtue, injuring any being is sin. तो ये संस्कृत का वो एक उदाहरण वहां देते हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे के ऊपर परोपकार करना यही पुण्य है, दूसरे के लिए पीड़ा करना
सबसे बुरी और पापी उसकी आप अगर आप कोई भी कहते हैं पाप करना है तो यही पाप है, किसी को पीड़ा देना। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई जाने, दूसरे का पीड़ जो जानता है और उसको दूर करने की कोशिश करता है और दूसरे पर परोपकार करता है, वही एक हम कह सकते हैं वही एक प्रमाण है। वहीं से आपको समझता है कि कौन सी क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या कर्मयोग है, क्या कर्मयोग नहीं है। और इसलिए भगवत गीता भी it frequently alludes to the duties dependent upon birth and the position. So birth and the position in the life in the society largely determines your mental and moral attitude towards the various activities of life. हम हमारा जो जन्म और हमारा जो स्थान है समाज में, उससे निर्धारित होता है कि हमारे लिए कर्तव्य क्या है, हमारी मानसिक तथा नैतिक जो दूसरों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, किस प्रकार से हमें दूसरों को देखना चाहिए, जगत की अनेक अनेक गतिविधियों को देखना चाहिए, कि इस पर निर्धारित करता है कि इस सारे रंगमंच पर हमारा स्थान क्या है, कहाँ से हम लोग उसको देख रहे हैं, उस पर निर्धारित करता है कि हमें क्या करना है। न केवल एक निरपेक्ष भाव से सब लोग यही करो, सब लोग वही करो, ये करना ठीक है, ये करना बुरा है, ये करना अच्छा है, इस प्रकार सा जनरलाइजेशन भारतीय परंपरा को मंजूर नहीं है। ये उसी स्थान पर, उसी के जन्म पर, उसके संस्कार पर, उसके जाने के पथ पर, जो पथ उसने चुना है और वो पथ पर वो कहाँ तक आया है, इस सब चीज पर वो निर्धारित करता है। तो इसलिए he says that American thinks that whatever an American does in accordance with the custom of his country is the best, and whoever does not follow his custom will be a very wicked man. And Hindu thinks in his own way, you know. So when I came to this country, I was going through a Chicago fair, a man from behind pulled my turban. स्वामी जी उसका उनकी घटना हुई थी उनके जीवन में, उसके बारे में बोलते। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तब मैं जा रहा था शिकागो के एक जतरा में, और किसी ने पीछे से मेरा वो जो मस्तक पर वो बहुत ही सुंदर दिखता है उनका जो टर्बन रहता था, उनका जो फेटा रहता था, किसी ने पीछे से थोड़ा खींच लिया। तो मैंने पीछे से मुड़ के देखा किसने किया होगा, वो तो बड़ा सज्जन दिख रहा था और अच्छा से वस्त्र वगैरह भी ठीक ठाक थे। तो मैंने इससे बात की और उसको पूछा कि आपको इंग्लिश भी उसको आ रहा था, और फिर उसको थोड़ा सा अचरज लगा, बोला कि आदमी इंग्लिश भी बोल रहा है, मेरे से ठीक से बात कर रहा है, और दूसरे ऐसे आगे चले गए, दूसरे किसी ने उनको पुश कर दिया। तो फिर उन्होंने स्वामी जी ने उनको पूछा कि आपने ये क्यों किया, तो उसको भी थोड़ा लज्जा आ गई और वो उसने सॉरी कहा, उनको अपोलॉजी दे दी और बोले कि क्यों आप इसकी ऐसे ड्रेस डाल के आप क्यों पब्लिक प्लेस आते हैं, उनको देख के हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि इसकी कुछ हमें चेष्टा करनी, उसको कुछ हमें मस्करा जैसा हमारे मन में विचार आ जाते हैं कि उसका टर्बन ही खींच लो या उसको पुश ही कर लो, क्योंकि एक बहुत ही अचरज भरा वस्त्र पहनकर आप यहाँ घूम रहे हो, ऐसी चीजें हम लोग करते नहीं है। तो इसीलिए स्वामी जी ने फिर उनको कहा कि सॉरी, जब उन्होंने स्वामी जी को सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप भी बहुत शिक्षित है और पढ़े लिखे अच्छे इंग्लिश बात करते हैं और इतने सरलता से हमसे बात करें, तो हमें ही थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि हमने इस प्रकार से इम्प्रेशन क्यों बनाया। तो कई बार यही होता है, जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं वो उनसे थोड़े से जो कमजोर लोग हैं उनके बारे में ऐसे ही कुछ पूर्व कल्पनाएं या एक निर्धारित एक प्रकार के मन में मत बना देते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही। प्रगत राष्ट्र भी एक प्रकार के जो कमजोर राष्ट्र है उनके बारे में ऐसी कल्पना बना दी। इसलिए भारत के बारे में ऐसी कल्पना होगी कि यहाँ ऐसे ही सब नाग और सर्प से खेलने वाले, जादू टोना करने वाले, तरह तरह के अलग ही वस्त्र पहनने वाले और बुद्धू किस्म के, जिनको कुछ इतिहास नहीं है, भूगोल नहीं है, शास्त्र और विज्ञान मालूम नहीं है, ऐसे लोग रहते हैं। ये पूर्व कल्पना उन्होंने बना दी थी, पूरी जुडाइस एक बहुत ही गलत धारणा उन्होंने अपने मन में बिठा दी। तो कई बार फर्स्ट अपीयरेंस में हम लोग कुछ गलत किसी के बारे में सोच लेते हैं, और that very man who asked me why I did not dress as he did wanted to ill treat me because my dress may have been a very good man, a good father, a good citizen, but the kindliness of his nature died as soon as he saw that a man is in the different dress. So हम जी कहते हैं कि कितने हम लोग क्या कह सकते हैं, असहिष्णु होते हैं हम लोग। मतलब कई सारे लोग, खास करके जो प्रगत राष्ट्र या प्रगत अभी भी ऐसा वंशवाद और इस प्रकार से आप दिख रहे डिस्क्रिमिनेशन की कई घटनाएं न्यूज में हमें दिखाई देती है। जस्ट कोई दूसरा अलग दिख रहा है, मेरे जैसा नहीं दिख रहा है, उसका वर्ण थोड़ा सा अलग है, या फिर उसके जो वस्त्र या उसकी जो पद्धतियां मेरे से अलग है, इसलिए कोई आदमी उसकी
लाभ उठाता है, उसको थोड़े प्रकार से उस पे बुलिंग करता है, उसको थोड़े से डर दिखाता है या फिर उस पे हँसता है। ऐसे भी आदमी ये लोग ये करते हैं जो अगर आप उनका बाकी जीवन देखेंगे तो एक अच्छा पति है, अच्छा नागरिक है, अच्छा पिता है, बुरे लोग नहीं हैं। लेकिन उनमें ये सहिष्णुता या उनमें ये विशालता आना आना मुश्किल हो जाता है कि मेरे से इतना अलग आदमी किस प्रकार से हो सकता है। और इसीलिए हमेशा सारे देशों में स्वामी जी कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड because they do not know how to defend themselves. Thus they carry home false impressions of the people they have seen. इसलिए जब भी आप कोई पराये मुल्क में जाता है, कई बार आपको इस प्रकार से सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं और फिर उस मुल्क के, उस देश के एक गलत इंप्रेशन आप घर में लेके आते हैं। हम हमेशा देखेंगे जो व्यापारी है या जो समुद्र के नौका वगैरह चलाने वाले जो लोग हैं या सैनिक है, ये सब लोग जब दूसरे देश में जाते हैं तो उनका उनसे संपर्क ऐसे ही छोटा-छोटा और कभी-कभार आता है और इसलिए वो गलत इंप्रेशन लेके आते हैं। और फिर एक देश दूसरे देश को राक्षसी कहता है, दूसरा पहले को कहता है, एक दूसरे को अज्ञानी कहता है, दूसरा वापस पहले को अज्ञानी कहता है, ये चलता रहता है। And therefore, one point we ought to remember is that we should always try to see that the duty of others through their own eyes and never judge the customs of other people from our own standard. I am not the standard of the universe. मैं कोई विश्व, बहुत बड़ी बात स्वामी जी कहते हैं कि मैं कोई पूरी दुनिया का एक मेजरमेंट टेप नहीं हूँ कि मेरे ही टेप से सबको मेजर करो, मेरे ही स्टैंडर्ड से सबको जज करो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को उसके उसके जो कल्चर है, उसकी जो परंपरा है, उसमें जो अलग अलग उसमें छोटी छोटी बातें, खाना क्या हो, पहनना क्या हो, रहना कैसे हो, चलना कैसे हो, उनके संस्कार में, उनकी संस्कृति में अलग बात होती है। तो उसके आंखों से आपको देखने को आना चाहिए, फिर आपको समझेगा उसका कर्तव्य क्या है। उसको अपनी तरफ से आप कुछ जजमेंट देंगे, आप उसको लिए अपनी कल्पना लाद देंगे तो कुछ होगा नहीं। So I have to accommodate myself to the world and not the world to me. I must get, that understanding that the world is as it is. It has got so much diversity. Now I have to see that every environment changes, and as per that the nature of duty also changes. Doing the duty which is ours at a particular time is the best thing we can do in this world. इसलिए मेरे आज के क्षण में, मेरे आज के स्थान में जो भी मेरा कर्तव्य है मैं करूंगा तो दुनिया का सबसे बड़ा भला हम करेंगे, ना कि हर एक को सिखाने जाना, उसकी पद्धतियां चेंज करना या क्रिटिसाइज करना या उनको कुछ तोड़ मरोड़ देना। इस प्रकार की चीज करने की जरूरत नहीं। जहां आप खड़े हैं, जो आपका स्थान है, जो आपका जहां से आप जन्मे हैं, उसी धरा के, उसी आकाश के, उसी परिवार के और परिसर के अनुसार आप अपना कर्तव्य करो और उसमें जितना हो सके उतना इस जन्म में आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। यही हमारी समाज के लिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दिस इज व्हाट अवर्स बाय आवर पोजीशन इन लाइफ एंड दिस सोसाइटी। There is, however, one great danger in the human nature, which that man never examines himself. He thinks he is quite as fit to be on the throne as the king. इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य को हमेशा लगता है कि मुझे अपने को अपना अभ्यास या मेरी अपनी परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अच्छा ही हूँ, मान लो मैं सम्राट हूँ, मैं दुनिया का सबसे ठीक ठाक आदमी हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सज्जन हूँ, मैं कुछ गलत चीज नहीं। हमें अपने आप को कभी आत्म परीक्षण करने की जरूरत लगती नहीं है। ये सबसे बड़ा इस सारी व्यवस्था में धोखा है। हर एक को दूसरे का परीक्षण करना है लेकिन आत्म परीक्षण नहीं करना है। So even if he must first show that he has done the duty of his own position and then higher duties will come to him. When he will begin to work earnestly in the world, nature gives us blows right and left and soon enables us to find our own position. No man can long occupy satisfactorily position for which he is not fit. तो जब हम इस प्रकार से अपने कर्तव्य करने की पूरेपूर कोशिश करते जीवन जीते हैं तो प्रकृति से हमें अनेक अनुभव आते हैं। कई बार तो हमें बड़े आघात भी हो जाते हैं, यहाँ से वहां से हर जगह से जब आघात होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि मेरा वास्तव स्थान क्या है और आज मैं जो कर रहा था वो स्थान क्या सच में मेरा है या मैं गलत स्थान पर काम कर रहा था। ऐसा कोई भी आदमी जो उस जगह के लिए फिट नहीं है, उस जगह के लिए बना नहीं है, ऐसे गलत जगह पर वो ज्यादा देर तक अच्छा काम नहीं कर सकता था, उस जगह को वो विभूषित नहीं कर सकता। और इसलिए ये समझना बहुत आसान, बहुत अनिवार्य है जीवन में कि मेरा स्थान क्या है। वो स्थान मुझे मिलना चाहिए जो मेरे लिए पर्याप्त है या मेरे लिए बन गया है। भगवान ने मुझे वहां से काम करने के लिए यहाँ इस प्रकार से निर्मित किया है। कई बार हम पूरा जीवन ऐसे ही खपा देते हैं जो कि दूसरे किसी स्थान से हम लोग वी आर ट्राइंग टू बिकम दैट व्हिच वी आर नॉट। वी वांट टू ऑपरेट फ्रॉम दैट पोजीशन व्हिच इज नॉट एक्चुअली मेंट फॉर अस।
और उसको क्लिंग करते रहते हैं, उसको ही पकड़ के रहते हैं, उसकी अटैचमेंट हो जाती है। उसको छोड़ देना चाहिए कि ये सिंहासन, ये कुर्सी, ये जगह, ये मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इसके लिए पात्र नहीं हूँ, या फिर मैं इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपात्र हूँ, ये जगह के लिए मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी जगह और कोई है। तो ये जितना जल्दी इंसान को समझे कि आई एम मेड फॉर समथिंग डिफरेंट एंड माय प्लेस इज देयर, समथिंग हाई, लेट अस हैव दैट ग्रेट फेथ, एंड all of us are born to do some great work, and most of the life we spent in doing some petty things and just fighting for some petty positions or the places for which actually we don't belong to. So that's why Swamiji, when he's speaking of karma yoga, he brings out this beautiful idea from that what is your place, you be in that place, because in the earlier chapter he has told us each is great in his own place. आप ग्रेट हो सकते हैं, लेकिन उसका जो काउंटर पार्ट ही इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज टू मेक दैट हैपन यू हैव टू बी इन योर ओन प्लेस. नो मैन इज टू बी जज by the mere nature of his duties, but all should be judged by the manner and spirit in which he performs. और उसके बाद भी जो आपका स्थान रहेगा, एक मतलब क्या स्थान छोटा है या बड़ा है, आपका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आप छोटा भी काम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, क्या भावना से आप कर रहे हैं, क्या लगन से आप कर रहे हैं, क्या कौशल्य से आप उसको कर रहे हैं, इस पर सब निर्धारित होता है. योगा कर्मसु कौशलम, वो जो काम है उसमें आप कितने घुल मिल जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं. इसी से ये पता चलता है कि आप कितने उसमें महान हैं. ये आपके उस काम के प्रति प्रेम, निष्ठा और लगन पर निर्धारित करता है, न कि आप क्या काम कर रहे हैं. क्योंकि ये सारा जो नाट्य है, जगत का नाट्य है, उसमें आपको एक एक भूमिका दी है. अगर भिखारी की भूमिका दी है तो भिखारी भी ऐसा, एक मान लो एक कोई ड्रामा है और उस ड्रामा में भिखारी का रोल जिसने अदा किया बहुत सुंदर किया, और उसी ड्रामा में एक दूसरा आदमी था, वो राजा था, लेकिन राजा का रोल जो कर रहा था वो तो बड़ा ही खराब किस्म की एक्टिंग करके गया. तो आप एंड में क्या, अब ड्रामा के बाद आप क्या कहेंगे कि अच्छा था, नाट्य अच्छा था, लेकिन मुझे भिखारी का रोल अच्छा लगा, उसने बहुत सुंदर अभिनय किया. यही सारा कर्मयोग का भाग है. जो भाग उसको मिला था उसने इतना अच्छा किया कि सम्राट के काम करने वाले आदमी की भी लोगों को ऐसा लगा उसका कोई महत्व नहीं है. इस नाट्य को आगे लेके जाने के लिए ये भिखारी का पात्र ज्यादा महत्वपूर्ण था. तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि जो स्थान हमारा है वो ना बड़ा है ना छोटा है. ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस, एंड इन दैट प्लेस यू शुड नो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ यू. And that is where Swamiji is trying to explain us